Welcome students. Today we are going to learn about the conversion of compound sentences to complex sentences. Okay? Before doing this, let us see something. See, we know that sentences are of mainly three types. Okay? Simple sentence, complex sentence and compound sentence. Now, the differentiation between these three sentences are based on mainly how and what type of clause are present in the particular sentence. Okay. For example, in simple sentence, there is only one principal clause. There is no dependent clause. Okay. So what do we know about clause? Just a little revision work. We know that in a sentence there are mainly two types of clauses. One is the principal clause and the second one is the dependent clause. Okay, so principal clause, that means if we separate the principal clause from the total sentence, then also the principal clause will have a complete meaning. But in the case of a dependent clause, there is a joining word and also it will not have a complete meaning without the principal clause. Okay, so in simple sentence, only one principal clause is there. No joining word and no other presence of any other clauses. For example, you see, I am the first boy. Okay, now in complex sentence, there is one principal clause and one or more dependent clause. There is one principal clause and one or more dependent clause. You see, I am the first boy was the simple sentence and I am the boy who has come first. This is the complex sentence. Okay, now you come to compound sentence. Here there are presence of two or more principal clauses but no dependent clause. Here also you will find one joining word, but there are two principal clauses and no dependent clause. Okay, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेंटेंसेस जो है वो एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. और ये तीनों जो डिफरेंस जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? वो क्लॉजेस के बेसिस पे करते हैं. और क्लॉजेस हम लोग जानते हैं कि एक वाक्य में मुख्य रूप से दो तरह का क्लॉज रहता है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर वाक्य से हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को अलग भी करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज का पूरा मतलब बनता है, जबकि अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को अलग करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज का पूरा मतलब नहीं बनता है. अब देखो, ये जो सिंपल वाक्य है यहाँ पे खाली एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और कोई भी जॉइनिंग वर्ड और कोई भी दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे नहीं रहता है. जैसे कि देखो, आई एम द फर्स्ट बॉय, मैं फर्स्ट बॉय हूँ. नाउ देखो कॉम्प्लेक्स वाक्य में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज रहता है. जैसा कि देखो, आई एम द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट. ओके, सो यू सी, आई एम द बॉय हु हैज़ कम फर्स्ट. मैं वो लड़का हूँ जो फर्स्ट आया है. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने हु एक जॉइनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है और ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, सो नाउ कम टू द कंपाउंड सेंटेंस. अब ये कंपाउंड सेंटेंस देखो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें भी एक जॉइनिंग वर्ड रहता है और दो क्लॉज रहता है, लेकिन दो प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे नहीं रहता है. जैसे कि देखो, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, एंड आई हैव कम फर्स्ट. ओके, सो नाउ आज हम लोग मेनली क्या सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू चेंज कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स. How to change compound sentences to complex ones. Okay, now see, for example, here you see there is one compound sentence, search his pockets and you will find the watch. उसके पॉकेट को सर्च करो और तुमको जो है वॉच मिल जाएगा. कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने अब देखो यहाँ पे एंड है, दो प्रिंसिपल वाक्य हैं. सर्च हिज पॉकेट्स ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये यू विल फाइंड द वॉच ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है.
ओके। सो नाउ ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना है हमको क्या करना है, ये एंड हटाना है. We must remove and we must write the sentence in such a way that there is one principal clause and at least one dependent clause with a joining word. No two principal clause. हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कि एक जॉइनिंग वर्ड आएगा और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा. जैसे यहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको हमें हटा के एक प्रिंसिपल क्लॉज करना है और एक डिपेंडेंट क्लॉज करना है. तो ये वाक्य का मीनिंग पहले समझने का कोशिश करो. क्या मीनिंग बताया गया है कि उसके पॉकेट्स को ढूंढो तो वॉच मिल जाएगा. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स. तो देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये जॉइनिंग वर्ड लगाया है. इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स, अगर तुम उसके पॉकेट्स को सर्च करोगे, कॉमा, यू विल फाइंड द वॉच. यू विल फाइंड द वॉच, ये पोर्शन जो है ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ़ के साथ लगा हुआ ये कॉमा तक ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज. अब बोलोगे यहाँ पे कॉमा क्यों है. जब हम लोग वाक्य जॉइनिंग वर्ड से शुरू करते हैं, जैसे कि ऑल्दो से कभी कभी हम लोग जो है वाक्य शुरू करते हैं, कभी व्हेन से शुरू करते हैं, करना पड़ता है कभी कभी. तो जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने अनलेस से, यहाँ पे भी देखोगे. तो जब हम लोग जॉइनिंग वर्ड से एक वाक्य का शुरुआत करते हैं, व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस উইথ আ জয়নিং ওয়ার্ড, যখন একটা জয়নিং ওয়ার্ড দিয়ে আমরা একটা বাক্য শুরু করি, তখন এই ক্লজটা এই জয়নিং ওয়ার্ডের সঙ্গে নিয়ে এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা যেখানে শেষ হচ্ছে, जॉइनिंग वर्ड के साथ ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज जहाँ पे जाके ख़त्म होगा वहाँ पे हमको एक कॉमा लगाना पड़ेगा. और कॉमा के बाद वाला हिस्सा, द पोर्शन आफ्टर द कॉमा, कॉमार পরের যে পোর্শনটা থাকবে সেইটা হয়ে যাবে আমাদের কি ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ. মানেটা দেখো একই রইল কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্স হয়ে গেল. ওকে. Now you see another example. Do as I tell you. This is compound. Do as I tell you or you will regret. सो ये वाला जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन ये वाला भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है. अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को अलग कर देते हैं, डू एज आई टेल यू कंप्लीट वाक्य है, यू विल रिग्रेट ये भी एक कंप्लीट वाक्य है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं. लेकिन हमें मतलब एक रख के ऐसे लिखना है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज बन जाए और एक प्रिंसिपल क्लॉज रहे, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स होगा. তাই তো আমাদের এমনভাবে বাক্যটা লিখতে হবে যাতে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজের বদলে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়ে যায় আর একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে যায়, তবেই তো বাক্যটা কমপ্লেক্স হবে. ইজন্ট ইট? সো व्हाट वी मस्ट डू, তাহলে আগে মিনিংটা পড়ো. डू एज आई टेल यू, जैसा बोला मैं बोल रही हूँ वैसा करो. और यू विल रिग्रेट, नहीं तो पछताना पड़ेगा. আমি যা বলছি সেরম করো, নয়তো পস্তাতে হবে. তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, আমার মতো কাজ যদি না করো তাহলে তুমি পস্তাবে. अगर तुम मेरे जैसा काम नहीं करोगे तो तुम पछताओगे. इफ़ यू डू नॉट डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट. तो देखो हम लोगों ने कैसे लिखा है, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अगर मैं जैसा बोलती हूँ वैसा नहीं करोगे, अनलेस यू डू एज आई टेल यू. और यहाँ पे भी चूँकि हम लोगों ने अनलेस यानी जॉइनिंग वर्ड से शुरू किया है, तो जहाँ पे जाके ये डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म हुआ वहाँ पे देखो हम लोगों ने एक कॉमा लगाया हुआ है. सो अनलेस यू डू एज आई टेल यू, अगर जैसा मैं बोलती हूँ वैसा नहीं करोगे, यू विल रिग्रेट इट. सो ये वाला हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज और ये वाला हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. तो बन गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाक्य. नेक्स्ट, कंपाउंड. ही एम्ड एट विनिंग द प्राइज एंड वर्कड हार्ड. सो ये भी एक कंपाउंड वाक्य है. ही एम्ड एट विनिंग द प्राइज, वो प्राइज जीतने को एम किया, एंड परिश्रम किया. तो मतलब को समझो, मानेटाके बोझार चेष्टा करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ही वांटेड टू विन द प्राइज एंड सो ही वर्कड हार्ड, दैट्स इट. वो प्राइज जीतते चाइछिलो ताई परिश्रम करलो, उसको प्राइज जीतना था इसीलिए उसने परिश्रम किया. तो देखो मैं कॉम्प्लेक्स कैसे लिख रही हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स कैसे लिख रही हूँ देखो. ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, सो दैट ही माइट विन द प्राइज, ताकि वो प्राइज जीत जाए. सो ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, सो दैट ही माइट विन द प्राइज, ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज. सो ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स. अभी देखो हम लोग थोड़ा सा किताब से देखते हैं. ओके. सो दिस मैं आई एम डूइंग फ्रॉम रेन एंड मार्टिन.
This I am doing from Rain and Martin High School English Grammar and Composition by Rain and Martin, a very good grammar book. We will try to do some of the examples. देखो यहाँ पे exercise 83 transform from compound into complex sentences क्या बोला गया है देखो. We will try to discuss some of them, okay, today. There are many, so it will not be possible for me to complete all that in one video. अच्छा, spare the rod and spoil the child. ये एक कहावत है, दिस इज़ अ प्रोवर्ब, कि अगर शासन नहीं करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा. स्पेयर द रड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, যদি শাসন না করো তাহলে বাচ্চা বিগড়ে যাবে. তাহলে আমি এটা কি বলতে পারি? ইফ ইউ স্পেয়ার দ্য রড কমা ইউ উইল স্পয়েল দ্য চাইল্ড. ইফ ইউ স্পেয়ার দ্য রড কমা ইউ উইল স্পয়েল দ্য চাইল্ড. হি पुट ऑन हिज हैट एंड वेंट आउटसाइड. उसने अपना टोपी लगाया और बाहर गया. तो टोपी लगाने के बाद बाहर गया. आफ्टर ही पुट ऑन हिज हैट कॉमा, मैंने आफ्टर ज्वाइनिंग वर्ड किया, ठीक है. आफ्टर ही पुट ऑन हिज हैट कॉमा ही वेंट आउटसाइड. वेरी सिंपल. नंबर 3, एट लेंथ शी वोक एंड लुक्ड राउंड. देर से वो उठी और इधर उधर देखी. एट लेंथ शी वोक एंड लुक्ड राउंड. सो when she woke at length, comma, she looked around. Very simple. Keep quiet or you will be punished. या तो तुम चुप रहो या तुमको पनिशमेंट मिलेगा. तो जैसा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में भी किया था, unless you keep quiet you will be punished. If you do not keep quiet you will be punished. दोनों ही हो सकता है. The ship was wrecked but the crew were saved. जहाज टूट गया लेकिन लोग बच गए. तो की होते पारे एटा, जहाज हालांकि टूट गया लेकिन लोग बच गए. सो हम क्या कर सकते हैं? दो द शिप wrecked, कॉमा द crew were saved. दो द शिप wrecked, कॉमा द crew were saved. Either Shireen will come or she will send a letter. या तो शीरीन आएगी या वो एक लेटर सेंड करेगी. मतलब अगर वो नहीं आएगी तो लेटर सेंड करेगी, या वो आएगी नहीं तो लेटर सेंड करेगी. तो और शी विल सेंड अ लेटर, या वो आएगी या लेटर सेंड करेगी. माने कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा. आइदर और है, दोनों एक साथ नहीं होगा कि वो आएगी और लेटर लाएगी. नहीं, या आएगी या लेटर भेजेगी. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं? देखो, इफ़ शीरीन डज नॉट कम, कॉमा शी विल सेंड अ लेटर. मतलब को समझना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. आगे मीनिंगटाके बुझबे ताहलेई देखबे करते पारछो. डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट. निजेर बेस्टटा दाओ, कोनोदिनও रिग्रेट करबे ना, कोनोदिनও पछताबे ना. ताहले इफ यू डू योर बेस्ट, कॉमा यू विल नेवर रिग्रेट इट. वेरी गुड. नाउ यू सी, ही रिसीव्ड योर टेलीग्राम एंड सेट ऑफ एट वंस. उसको तुम्हारा टेलीग्राम मिला, वो तुम्हारा टेलीग्राम पेलो और तखुनी बेरिए पड़े, तभी वो निकल गया. तो क्या होगा? एज सून एज ही रिसीव्ड योर टेलीग्राम, कॉमा ही सेट ऑफ. जैसे ही तुम्हारा टेलीग्राम मिला, एज सून एज ही रिसीव्ड योर टेलीग्राम ही सेट ऑफ. आई मस्ट हरी बैक एट वंस और माई बिजनेस विल ग्रेटली सफ़र. मुझे अभी अभी लौटना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस बहुत नुकसान होगा. আমাকে এখনই ফিরতে হবে, নয়তো আমার বিজনেসের অনেক লস হবে. তাহলে আমি কি করতে পারি? ইফ আই ডু নট হারি ব্যাক অ্যাট ওয়ান্স, कॉमा माई बिजनेस विल ग्रेटली सफ़र. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अनलेस आई हरी बैक एट वंस, कॉमा माई बिजनेस विल ग्रेटली सफ़र. 10 डू दिस और यू विल बी पनिश्ड. ये करो नहीं तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा. अनलेस यू डू दिस यू विल बी पनिश्ड. ओके. Now see, Rama may not be clever but he is certainly industrious. रामा चतुर नहीं है, रामार तो बुद्धि नहीं, किंतु लेकिन वो बहुत परिश्रमी है, वो अनेक परिश्रमी. तो दो रामा may not be clever, comma he is certainly industrious. 12. I put my hand into my pocket and gave him a rupee. मैं अपना हाथ अपने पॉकेट में डाला और उसको 1 रुपया दिया. ये
बहुत ये हैट वाला जैसा है. आफ्टर आई पुट माई हैंड इन टू माई पॉकेट आई गेव हिम अ रुपी. ओके. ना 13. Only do the right and you will have no reason to be ashamed. सही करो तो कोई लज्जा की बात नहीं होगी. सब समय ঠিকটা করো তাহলে কোনো দিন কোনো লজ্জার ব্যাপার হবে না. তাহলে ইফ ইউ ডু অনলি দ্য রাইট বা ইফ ইউ ডু দ্য রাইট কমা ইউ উইল হ্যাভ নো রিজন টু বি অ্যাশেমড. ওকে. তো দেখো অতটা কিন্তু শক্ত কিছু নয়, তাই না? তাহলে নাম্বার 14টা দেখি. দ্য ক্রো স্টোল আ পিস অফ চিজ অ্যান্ড ফ্লিউ উইথ ইট টু আ ট্রি. তাহলে ক্রোটা কী করলো, একটা পিস অফ চিজ চুরি করেছে, দিয়ে ও কোথায় চলে গেছে, একটা ট্রিতে পালিয়ে গেছে. कौवे ने क्या किया, एक चीज़ चुराया, पीस ऑफ चीज़ चुराया और वो पेड़ पे भाग गया. তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি না, দ্য ক্রো আমি এরমভাবে লিখতে পারি. দেখো, দ্য ক্রো কমা when he had stolen a piece of cheese comma flew with it to a tree. The crow comma when he had stolen a piece of cheese comma flew with it to a tree. Now number 15, I called at your house yesterday but you were out. मैंने तुमको कल फ़ोन किया था घर में लेकिन तुम बाहर थे. তোমার বাড়িতে ফোন করেছিলাম, তুমি ছিলে না. তাহলে আমি কি বলতে পারি, when I called at your house yesterday comma you were out. Okay, so you see I discussed from number 1 to 15 today. In this video I discussed number 1 to 15 today. Now there are many, there are actually 54 in this exercise, so it is not possible for me to do all of that. Okay, let me do till number 20, though the video is becoming too long. I will do it quite fast. Number 15 and then I can't see number 16. This is odd. I mean, I don't know. Okay, so let us do what is printed out here. We must do our work well or our master will be angry with us. আমাদের কাজটা ভালো করে করতে হবে, নয়তো মাস্টার রেগে যাবে. हमें अपना काम अच्छे से करना है, नहीं तो मास्टर जो है गुस्सा कर जाएंगे. এটা আমরা কি করতে পারি, if we do not do our work well comma our master will be angry with us. Unless we do our work well comma our master will be angry with us. 18, you have earned his gratitude so you shall not go unrewarded. তুমি ওনার গ্র্যাটিটিউড জিতে নিয়েছো উইথ ইউর গুড বিহেভিয়ার অফকোর্স, সো ইউ শ্যাল নট গো আনরিওয়ার্ডেড. তো তাহলে তোমাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে, রিওয়ার্ড ছাড়া তুমি যাবে না. তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি, সিন্স ইউ হ্যাভ আর্নড হিজ গ্র্যাটিটিউড, সিন্স ইউ হ্যাভ আর্নড হিজ গ্র্যাটিটিউড ইউ উইল নট গো আনরিওয়ার্ডেড. সিন্স ইউ হ্যাভ আর্নড his gratitude you will not go unrewarded. Number 19, he failed in his first attempt and never tried again. ও ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ফেল করলো আর কোনো দিনও ট্রাই করেনি. তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি, আফটার হি ফেলড ইন হিজ ফার্স্ট অ্যাটেম্পট হি নেভার ট্রাইড অ্যাগেন. আফটার হি ফেলড ইন হিজ ফার্স্ট অ্যাটেম্পট হি নেভার ট্রাইড অ্যাগেন. 20, टाइम फ्लाइज फास्ट येट इट समटाइम्स अपीयर्स टू मूव स्लोली. टाइम बहुत जल्दी जाता है लेकिन कभी कभी लगता है बहुत स्लो जा रहा है. तो আমরা কি লিখতে পারি, এটা দো টাইম ফ্লাইজ ফার্স্ট কমা ইট সামটাইমস অ্যাপিয়ার্স টু মুভ স্লোলি. দো টাইম ফ্লাইজ ফার্স্ট কমা ইয়েট ইট সরি আর ইয়েটটা দেবে না, ইট সামটাইমস অ্যাপিয়ার্স টু মুভ স্লোলি. আর একবার বলছি, দো টাইম ফ্লাইজ ফার্স্ট কমা ইট সামটাইমস অ্যাপিয়ার্স টু মুভ স্লোলি. Okay, so today we have discussed from number 1 to 20 of exercise 83. Okay, so this is what we are doing. We are doing conversion of compound sentences to complex sentences. Next day in next video, if you people want, যদি তোমরা চাও, যদি তোমরা কমেন্টে লেখো যে তোমাদের প্রয়োজন, তাহলে আমরা 21 থেকে নিয়ে 40 অবধি বা তারও বেশি আমরা আলোচনা করতে পারি. ঠিক আছে, তাহলে আজকে এইটুকুই. প্লিজ লার্ন, follow my instructions, try to work out whatever we have discussed and also more. আমরা যতটুকু ডিসকাস করেছি তার বেশিও তোমরা করার চেষ্টা করবে.
ঠিক আছে, based on what we have learned here. Okay, so till then, goodbye. Please share, like and subscribe. Till then, goodbye students.